Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Shri Gaura Mehta ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Welcome to all of you. Last class we completed shloka number 6, in which Krishna started speaking about himself. तो पिछले सत्र हमने देखा कि कृष्ण अपने बारे में बोलना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने बोला था कि मैं संभवामि आत्मा माया, मैं अपने निज रूप में आता हूँ. So in the next few slokas we are going to study about when does Krishna come, मतलब कृष्णा कब आते हैं, why does he come, क्यों आते हैं, और उनके आने के जाने के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में जानने से हमें क्या लाभ मिलेगा. So what is the benefit we get when we listen to the birth, apparent birth, the disappearance of the Lord and all his pastimes. So Krishna avatar is not a incarnation. तो कृष्णा का जो आगमन है, कृष्णा कोई अवतार नहीं है. कृष्णा स्वयं अपने रूप, भगवान है, वो अपने निज स्वरूप में वो आते हैं. And he descends himself, वो स्वयं खुद अपने आप अवतारित होते हैं. And Krishna is not a dictator. Krishna is a benefactor. तो कृष्णा एक जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हिटलर, स्टालिन, लेनिन, तो they were dictators, मतलब वो डिक्टेट करते थे टर्म्स. लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है. So Krishna is not like this. Krishna is a benefactor. कृष्णा सुहृदं सर्वभूतानां है. तो आइए आज हम बात करेंगे पहले क्यों कृष्णा अवतार लेते हैं, क्यों कृष्णा अपने निज रूप में आते हैं. So we should give up this habit of telling कृष्णा ने अवतार लिया. Of course, Krishna avatar means to descend. In that way, the term is okay. But the general connotation to the term avatar, जो जन सामान्य लोग जानते हैं, अवतार का मतलब है कि भगवान किसी और रूप में आ गए. But that's not the case with Krishna. So what I will do, I will display the shloka, and after each line, I will give a short pause so that you can also repeat it at your place. Do not put your audio on. You can just repeat it after I say the first line. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam sujamyaham. So this shloka is dealing with when does Krishna appear, कृष्णा कब आते हैं. तो कृष्ण अपने आप बता रहे कि वो कब आते हैं. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, जब धर्म ग्लानि होता है, जब धर्म क्षीण होता है, तब हे भारत,
हे अर्जुन, मैं आता हूं, वो डिसेंडेंट ऑफ भरता, एंड द प्रिडोमिनेंट राइज ऑफ योर रिलीजन अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो जब अधर्म बहुतेक बढ़ जाता है, एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तदा तब आत्मानं मैं, सृजाम्यहम् मैं इस धरती पे आता हूँ। तो ये दिस वर्ड सृजामि, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। एक्चुअली द वर्ड सृजामि मीन्स टू क्रिएट, मतलब बट कृष्णा को किसी ने क्रिएट नहीं किया। Nobody has created Krishna. So Prabhupada deals with this in the first few lines of the purport. So Prabhupada is a transcendental person. He knows what kind of doubts we all will get. कैसे doubts हम पालते हैं अपने अंदर, प्रभुपाद जी जानते हैं। वो शुद्ध भक्त हैं, वो उनको मालूम है कि सामान्य जन कैसे सोचते हैं। तो इसलिए पहले ही शब्दों में उन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश किया। द वर्ड सृजामि हियर इनसिग्निफिकेंट। तो सृजामि एक बहुत ही मुख्य पद है यहाँ पे। सृजामि कैनॉट बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्रिएशन। तो क्योंकि सृजामि का अर्थ है टू क्रिएट, मतलब आविष्कार करना, लेकिन कृष्णा को किसी ने आविष्कार नहीं किया। कृष्णा खुद अपने आप धरती पे आते हैं। Because according to previous verse, there is no creation of the Lord's form of the body. Previous verse में हमने पढ़ा 4.6 में, तो संभवामि आत्ममायया, मेरे निज रूप में मैं आता हूँ। And since all the forms of the Lord are eternally existent, तो भगवान के कोई भी अवतार हो, भगवान खुद दूसरी बात है, भगवान के सारे अवतार भी सनातन रूप में रहते हैं, मतलब they are permanently present, they always exist. Therefore Sujami means the Lord manifests himself as he is. तो सुजामी का अर्थ यहाँ पे है कि भगवान जैसे है वैसे नीचे आ रहे हैं, अपने निज रूप में आ रहे हैं। Although the Lord appears on schedule, तो भगवान का आने का एक समय होता है, तो स्केड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है। नेमली एट द एंड ऑफ द्वापर युग, कब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कब आते हैं? द्वापर युग के अंत में आते हैं। और कौन से द्वापर युग में? हर एक द्वापर युग में आते हैं। डज ही कम इन ऑल दी द्वापर युगस? नो, ही कम्स ऑन द 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma. तो भगवान कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के जब शासन चल रहा है, तो द्वापर युग 28वें द्वापर युग में वो खुद अपने आप आ जाते हैं। Still he has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भगवान भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो उनको उसी समय आना है। भगवान विराट है, स्वराट है, अपने मर्जी के मालिक हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी सृष्टि का नियम को तोड़ते नहीं है, तो एक टाइम टेबल के अनुसार वो आना पसंद करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। He therefore appears by his own will wherever there is a predominance of irreligiosity. अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म बढ़ने लगता है सिग्निफिकेंटली, तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। एंड डिसअपियरेंस ऑफ ट्रू रिलीजन, तो ग्लानिर, धर्मस्य ग्लानिर जब हो जाता है तब आते हैं। The principles of religion are laid down in the Vedas. तो धर्म का भाषा परिभाषा कहाँ पे दिया गया है? तो हमें वेदों में ये मिलेगा। And any discrepancy in the matter of properly executing the rules of Vedas makes one irreligious. तो अधर्म का मतलब क्या है? जो वेद शास्त्र में दिए गए बातों को जो शासन में नहीं लेके आता है, अपने जीवन में जो पालन नहीं करता है, वो अधर्म कर रहा है। अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बहुत जब वेद के अनुसार जब लोग नहीं चलते हैं उसको अधर्म बोलते हैं। In the Bhagavatam it is stated
that such principles are the laws of the Lord. तो भागवतम में कहा गया है धर्म का मतलब क्या है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान ने कहा है वो धर्म है, जो किसी अरे गहरे ने कहा है वो धर्म नहीं है। Only the Lord can manufacture a system of religion. तो केवल भगवान सृष्टि करता है वेदों का, शासनों का और धर्म अर्थ काम और मोक्ष का विधानों का। The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma. और पहली बार वेद संबोधित करते हुए भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। और कैसे बताया था? उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उनके हृदय में। ऐसा नहीं कि हम जैसे बातचीत करके उन्होंने ज्ञान दिया भगवान ब्रह्म को, उन्होंने हृदय के माध्यम से उनको ज्ञान का प्रकाश करवाया। Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the supreme personality of Godhead. तो धर्म क्या है? भगवान का बताया गया वाक्य है धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान ने बताया है वो है धर्म। These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. और ये सारे नियम भगवान धीरे धीरे हमें हमारे उद्धार के लिए बताते जाएंगे कि हम मानव कुल में क्या करना चाहिए, कि हमें धर्म के मार्ग में चल सकते हैं। The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord. And the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is, तो भगवान बोलते जाएंगे धर्म का मार्ग। और भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय में श्लोका नंबर 66 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऑर्डर देते हैं सबको, और वो क्या ऑर्डर है? The highest principle of religion is to surrender unto him only and nothing more. तो भगवान भगवद गीता के अंत में बोलने वाले हैं कि आप सारे धर्म के मार्ग को छोड़ दो जो आपने अभी तक सीखा है, आप सिर्फ मुझ में शरण दो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो सिर्फ मेरे शरण में आओ आप, ये असली धर्म है, ऐसे बताते हैं भगवान। तो हम बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि अरे ये बात कहने के लिए 18 अध्याय क्यों चाहिए था? एक ही सेंटेंस में बोल देते, कि सेंटेंस में वो बोल सकते हैं, वो बोल भी चुके हैं। क्या हम सुनते हैं? क्या हम उसका पालन करते हैं? हम फिर बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, ये क्यों, वो क्यों। तो इसलिए अर्जुन को एक माध्यम बना के, to making Arjuna an instrument, he is now opening Bhagavad Gita, he is opening the knowledge, the transcendental knowledge, Divya Gyan to all of us. Vedic principles push one towards complete surrender unto him. तो धर्म के मार्ग में वेद के अनुसार जब हम चलते जाएंगे, हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही जाने वाले हैं। And whenever such principles are disturbed by the demoniac, और जब ऐसे वेद मार्ग को, धर्म के मार्ग को आसुरी स्वभाव के लोग जो प्रदूषित कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं, उपद्रव करते हैं, the Lord appears, तो भगवान तब तदात्मानम सुजाम्यहम्। From Bhagavatam we understand that the Lord Buddha is the incarnation of Krishna. तो कृष्णा के अवतार है एक बुद्ध अवतार। वो appeared when materialism was rampant. उन्होंने जब अवतार लिया, जब भौतिक दृष्टिकोण इस धरती पे भौतिक ज्यादा हो गया था, मतलब कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण था ही नहीं। And materialists were using the pretext of authority of the Vedas, और धर्म को तोड़ मोड़ करके कुछ लोग ने धर्म को विकृत रूप से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to Vedic scriptures. तो लोगों ने क्या करने प्रारंभ कर दिया? विकृत रूप से धर्म को पेश किया, और वेद में दिया गया है कि अश्वमेध यज्ञ और गवालंब यज्ञ,
तो ऐसे है तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ, हम प्राणियों की बलि कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उन्होंने अपना ही सिस्टम प्रारंभ कर दिया वेद के अनुसार जो नहीं था। लॉर्ड बुद्ध अपीयर्ड टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो भगवान बुद्ध का अवतार इस उपद्रव को रोकने के लिए उन्होंने अवतार लिया। And therefore each and every अवतारा और incarnation of the Lord has a particular mission. तो भगवान के प्रत्येक अवतार का एक लक्ष्य होता है, एक मिशन होता है। तो भगवान के आने का भी एक मिशन है, लेकिन वो भौतिक क्यों आए हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। वो कब आते हैं अब हम समझ रहे हैं। No one should be accepted as an avatara unless he is referred to by scriptures. अगर वेद ग्रंथ में, भागवतम में और या कोई पुराणों में उल्लेख नहीं है तो कोई अपने आप को अवतार नहीं बोल सकते। तो कोई अवतार है भगवान का तो वो वेद ग्रंथ में उल्लेखित हो चुका है, कोई नया अवतार उससे और नहीं आने वाला। So it's not a fact that the Lord appears only on Indian soil. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा भगवान को सिर्फ भारत भूमि प्यारा है, सिर्फ भारत भूमि में आते हैं। जी नहीं, भगवान सिर्फ भारत भूमि में नहीं आते हैं। He can advent himself anywhere and everywhere. कहीं भी कभी भी वो आ सकते हैं या उनके अवतार आ सकता है। And whenever he desires to appear, जब भी वो चाहे वो आ सकते हैं। In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people. हर एक युग में जब वो अवतार लेते हैं कोई ना कोई रूप में, उनका अवतार का लक्ष्य क्या होता है, उस समय के लोगों को जो धर्म का मार्ग वो बोधन कर सकते हैं, ऐसे एक अवतार में वो आते हैं। But the mission is the same. He speaks as much about the religion, but under particular circumstances. But the mission is the same. हर अवतार में एक ही लक्ष्य है, एक ही कार्य, क्या? धर्म को संस्थापित करना, धर्म की रक्षा करना। So to lead people to God consciousness, भगवत प्राप्ति की ओर मानव समाज को लेके जाना और भगवत धाम को हमें वापस लेके जाना। And obedience to the principles of religion, और धर्म के मार्ग में सबको चलाने के लिए उनको बोधन करना उनका लक्ष्य है। Sometimes he descends personally, और कभी कभी वो खुद आ जाते हैं, जैसे कृष्ण द्वापर युग में 28वें द्वापर युग में ब्रह्मा के दिन में आए थे। And sometimes he sends his bona fide representative, और कभी कभी वो अपने शक्त्यावेश अवतार को भेज देते हैं गुरु के रूप में या कोई अवतार के रूप में। In the form of his son, अपने बेटे की तरह। For example, Prabhupada says Jesus Christ is Son of God. We all accept Jesus Christ is Son of God, and we don't negate his presence. और servant दास बन के आते हैं, और himself in some disguised form, दास बन के चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए, और अपने आप आए कृष्ण द्वापर युग में, और कोई और रूप में आए, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बहुत सारे अवतार। सबका एक ही लक्ष्य था, धर्म की रक्षा करना। The principles of भगवत गीता were spoken to Arjuna. तो ये प्रिंसिपल्स जो है भगवत गीता का अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान अब खजाना खोलते जाएंगे हम सबके लिए। And for that matter to the other highly elevated persons, और अन्य लोगों के लिए जो भगवत भक्ति में लीन है उनके लिए वो आए। Because he was highly advanced compared to ordinary persons. अर्जुन सामान्य व्यक्तियों से बहुत ही एडवांस्ड भक्त था। तो भगवान खुद बोल चुके हैं, भक्तों में सका चेती, he has already declared, he has certified Arjuna. So 2 + 2 = 4 is a mathematical principle. 2 और 2 4 होता है, ये गणित का नियम है। That is true both in beginners arithmetic class and in the advanced class as well. तो जब हम गणित प्रारंभ करते हैं उस समय में भी हमारे स्कूल में हमें सिखाया गया 2 और 2 और 4 होता है गणित में, जब हम उसको ऐड करते हैं। और जब हम एडवांस्ड, कोई पीएचडी कर चुका है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, कोई इंजीनियरिंग कर चुका है, तो उसमें भी हमें यही सिखाया गया कि 2 + 2 = 4.
Still there are higher and lower mathematics. लेकिन फिर भी उच्च स्तर का गणित है, नीचे स्तर का गणित है, लेकिन हर गणित में 2 और 2 4 होता है. In all incarnations of the Lord, therefore the same principles are taught. तो हर अवतार में हमें यही बोधन मिलेगा, धर्म की रक्षा करना, धर्म के मार्ग में चलना. They appear to be higher and lower in varied circumstances. और कुछ संदर्भ में उन्होंने तर्क कुछ ऊंचे विचार का रखा है, कुछ संदर्भ में जब लोग उतना समझ नहीं पाते हैं तो उन्होंने थोड़ा नीचे तर्क का, लेकिन उसका जो अर्थ था एक ही था, धर्म की रक्षा करो, धर्म की पथ पे चलो. The higher principles of religion begin with the acceptance of 4 orders. तो ऊंचे स्तर के धर्म क्या है, जो 4 क्या बोलते हैं आदेशों के आधार पे है. And the 4 statuses of social life, वर्ण और आश्रम के आधारित पे है. The whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. तो भगवान की अवतार का मूल लक्ष्य क्या है, धर्म का रक्षा करना, सबको भगवत धाम की ओर लेके जाना, भगवान की प्रेम सबको देना, भगवान की भक्ति सबको देना. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. तो भक्ति और भक्ति से विलुप्त होना कुछ संदर्भों में हो जाता है, तो भगवान फिर आते हैं उनको वापस अपने संविधानिक स्थिति, कृष्ण भावनामृत स्थिति में लेके जाने के लिए. या उनके शक्त्यावेश अवतार आते हैं गुरु के माध्यम से, या कोई और अवतार उनके आ जाते हैं. So now that we have studied when does Krishna appear, we will now understand why does Krishna appear, that we have already got a clue. So like I did for the 7th shloka, I'll read the first line and take a short pause. In your place, you can also repeat the shloka after I complete the line. Do not switch on your audio. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Krishna has already told us he comes sambhavami atma mayaya. कृष्ण बोल चुके हैं कि वो आते हैं 6ठे श्लोक में, मतलब वो अपने मर्जी से, अपने शक्ति के आधार से वो आते हैं. और पिछले श्लोक में हमें सुना कि क्यों आते हैं, धर्मस्य ग्लानिर और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इसलिए आते हैं. मतलब कब आते हैं, और अब बता रहे क्यों आते हैं, उनका आने का मकसद क्या है. सो उनका आने का मकसद ऐसे है, इन ऑर्डर टू deliver the pious, परित्राणाय साधुना, साधुओं को तारने के लिए, and to annihilate the miscreants, विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्कृत लोगों को, अभक्तों को विनाश करना, या उनकी अभक्ति को विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं. और ऐसे करने से क्या होगा, तीसरा कारण क्या है, as well as to re-establish the principles of religion. धर्म के मार्ग में चलने वालों का रक्षण हो गया. जब अधर्म के लोगों को शिक्षा दे दिया, शिक्षित कर दिया, तब क्या होगा, तब धर्म संस्थापन अर्थाय, तो धर्म का संस्थापन हो जाता है. I added myself millennium after millennium. तो इस कारण मैं आता हूँ अर्जुना. अब कब आता हूँ, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ एक ही लक्ष्य लेके, धर्म संस्थापन आता है. और धर्म संस्थापन मैं कैसे करता हूँ, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम. So according to Bhagavad Gita, a sadhu is a man in Krishna consciousness. तो भगवद गीता के अनुसार साधु का मतलब क्या है, जो कृष्ण भावनामृत में है स्थित, वो साधु है. So when does Krishna descend? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, Krishna descends to delineate, demonstrate and disseminate dharma. तो कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, धर्म को संस्थापना करने के लिए.
जब अधर्म बढ़ जाते हैं तब वो आते हैं। So now continuing that why he comes, a person may appear to be religious, but if he has qualification of Krishna consciousness, wholly and fully is understood to be a sadhu. कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, अभी अभी प्रारंभ किया है, लेकिन क्योंकि वो सही रास्ते में है, उनके बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी हमें उनको साधु मानना चाहिए, क्योंकि उनका रास्ता सही रास्ता है और वो मंजिल पे पहुंच जाएंगे उस रास्ते पे चलते चलते। And दुष्कृताम appears to one who doesn't care for Krishna consciousness. तो दुष्कृताम कौन है? दुष्कृताम जो कृष्ण के बारे में अलक्ष्य करते हैं, धर्म को अलक्ष्य करते हैं, ये है मिसक्रिएंट, धूर्त जो बोलते हैं। Such miscreants of दुष्कृताम are described as foolish and lowest of mankind. भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसे जो अधर्मी लोग हैं, चाहे कितना भी भौतिक स्तर पे पहुंचे लोग हैं, लेकिन they actually are foolish. वो मूढ़ आत्मा है और वो अधम है, मानव कुल में बहुत ही लो जाति के हैं। अब इस भौतिक जगत में उनका जो सोशल पोजीशन है, सामाजिक जो स्तर है वो ऊंचा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाएंगे, तुलना करेंगे तो सबसे नीचे स्तर वाले आदमी होते हैं। And even though they may be decorated with mundane education, बहुत शिक्षित हो सकते हैं, बहुत सारे PhD ले चुके होते हैं, और and whereas another person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. तो इनके तुलना में बहुत ही कल्चर्ड आदमी और लेकिन कृष्ण को अलक्ष्य कर दिया है, धर्म को मानता नहीं है, तो ऐसे आदमी जितना भी वेल एजुकेटेड हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसको साधु हम बोल नहीं सकते। साधु कौन है? तो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वो साधु है। As far as the atheists are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kamsa. लेकिन ये अच्छा विनाशाय दुष्कृताम, ऐसे पावरफुल दुष्कृत लोग आ गए जिसके लिए भगवान को खुद आना पड़ा? नहीं, उनका आने का पहला मतलब मेन मकसद ये नहीं था, क्योंकि रावण और कंस को तो उन्होंने मारा, उनको कुछ ऐसे वरदान मिला था कि भगवान के हाथों वो मारे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली थे कि भगवान को ही आना पड़ा। भगवान के कोई भी भक्त ये कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी बोलते हैं एक बार, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे, हम सबको इतना मतलब सेवा में क्यों लगा रहे कि हमें ये राम सेतु बनाने की कोशिश करा रहे हैं? अब तो भगवान हो, अब तो रावण को खुद मार सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं हाँ हनुमान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अरे सब जीव जंतु के हृदय में मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन एवरीबॉडीज हार्ट, और अगर मैं रावण के हृदय में भी बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन रावण's हार्ट आल्सो, आई जस्ट हैव टू गो आउट ऑफ हिज हार्ट एंड ही इज डेड। तो मुझे सिर्फ उसके हृदय से बाहर जाना है, वो तो गया काम से, वो तो मर जाएगा, लेकिन मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने भक्ति मांगा है मुझसे, और भक्ति का मतलब सेवा है, तो आप हमेशा मुझसे भक्ति मांगते हो, तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना, तो इसलिए आपको सेवा में मैं लगा रहा, वरना आप जो बोल रहे हो हनुमान जी वो ठीक है, रावण को मारने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे शस्त्र भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे उनके हृदय से बाहर निकल जाना है, रावण मर जाएगा। So that is how Krishna is. That's how Krishna is telling this, and that is how Rama told Hanuman. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons. उनके बहुत सारे agents हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। But the Lord especially descends to appease his unalloyed devotee. लेकिन वो भक्तों के लिए आते हैं, उनके साथ लीला करने के लिए वो आते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के साथ रहना चाहते हैं। Always harassed by the demoniac, क्योंकि वो भक्त है जो असली स्वभाव के लोग हैं, उनको हमेशा उपद्रव पहुंचाते हैं, उनको सहन नहीं होता
असूया पालते हैं वो भक्त और भगवान के बीच और भगवान के बारे में। Raman harasses the devotee even though the latter may appear to be skin, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, आसुरी स्वभाव के बंधु लोग अपने बंधु को भी नहीं छोड़ते। Although प्रहलाद महाराज was the son of हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज कौन थे? हिरण्यकशिपु के बेटे थे। तो he was nonetheless persecuted by his father. इसके बावजूद एक पिता ने अपने बेटे को उपद्रव पहुंचाया क्योंकि बेटा विष्णु का भक्त था। Although Devaki, the mother of Kamsa, mother of Krishna, was a sister of Kamsa. देवकी कंस का बहन थी, लेकिन कृष्ण का माँ होने के नाते और कृष्ण का मतलब ये आकाशवाणी हो गया था कि कृष्ण 8वें पुत्र बन के उनको मारेंगे, तब देवकी को उन्होंने परम शत्रु माना। So she and her husband were persecuted only because Krishna was born to them. तो कृष्ण का जन्म उनसे हुआ तो उन दोनों को बहुत सारे कष्ट उन्होंने दिया कंस ने। So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki. तो कृष्ण का अवतार, कृष्ण का फिर अवतार का मतलब कृष्ण स्वयं आए। तो कृष्ण स्वयं आए देवकी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि माँ का मतलब दर्जा उन्होंने दे दिया था उनको, परम भक्त थी, वासुदेव परम भक्त थे, तो उनको दार करने के लिए आए। Rather than kill Kamsa, कंसा को मारने का उनका पहला प्रोग्राम नहीं था। It was not the main program. It was one of these side programs. But both were performed simultaneously. Therefore, it is said that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. इसीलिए भगवान आते हैं। In Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj, the following verses summarizes the principles of incarnation. तो चैतन्य चरितामृता में अवतारों के बारे में बताया गया है। सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंचे अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीता परव्यो में सवार अवस्थान विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम। Avatar or incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation. तो गोलोक से भगवान आते हैं अपने आप या कोई अवतार लेके। And the particular form of the personality of Godhead whoso descends is called an incarnation. जब कोई और रूप में आते हैं कृष्ण, उसको अवतार बोला जाता है। Such incarnations are situated in the spiritual world और वो सनातन रूप से आध्यात्मिक जगत में है। When they descend to the material creation, they assume the name अवतारा। जब वो धरती पे आते हैं उनको अवतार पुकारा जाता है। The various kinds of avatars, तो अवतार का भी अनेक classification, different types of avatars are there. Purusha avatara, Guna avatara, Leela avatara, Shakyavesha avatara, Manvantara avatara, Yuga avatara, all appearing on schedule all over the universe. तो केवल भारत भूमि में नहीं आ रहे, all over the universe, केवल धरती में नहीं आ रहे और केवल इस ब्रह्मांड में नहीं आ रहे, अनेकों लाखों कोटि ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में भगवान का अवतार होता है और भगवान खुद भी आते हैं। They are all scheduled, and I'll not read about this different avatara meaning, but self-explanatory. Purusha avatara, Leela avatara, Manvantara avatara. ये self-explanatory है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं मैं पढ़ूंगा। But Lord Krishna is the primeval Lord, लेकिन कृष्ण आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, the fountainhead of all avatars. रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरो भुवनेषु किंतु कृष्ण से बाकी सारे अवतार आ रहा है। So Lord Krishna descends for the specific purposes of mitigating the anxieties of the pure devotees. भक्तों का जो कुतूहलता है उनसे मिलने का और भक्तों का जो एंजाइटी है असुरों का उपद्रव को उसको निवारण करने के लिए भगवान खुद आते हैं। So he's such a loving person. He is not sending some avatara. He is not sending some representative. He himself is coming to protect the devotees.
सो इसके बारे में बीरबल और अकबर का कहानी है, हम बात करेंगे इसके बारे में। द प्राइम पर्पस ऑफ कृष्ण अवतार इज टू सैटिस्फाई हिज अनअलॉयड डिवोटीज। तो कृष्ण का अवतार का मूल उद्देश्य है उनके शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना। The Lord says that he incarnates himself in every millennium. हर युग में आते हैं। This indicates that he incarnates in Kali Yuga also. इसका मतलब कलयुग में भी वो अवतार लेके आते हैं। As stated in Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो कली क्या अवतार, कली युग में भगवान कृष्ण का अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण का सम्मिलित अवतार है। वेरी पावरफुल। To spread the worship of Krishna by Sankirtana movement, और उन्होंने कलयुग में कलों तक हरि कीर्तना, कलों में हरि कीर्तन ही धर्म का मार्ग है, हरि कीर्तन ही कृष्ण की पूजा का विधान है, राधा कृष्ण का पूजा का विधान है। तो हरि कीर्तन का महिमा उन्होंने सब जगह उन्होंने फैलाने का संकल्प किया। कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश स्पेशली साउथ इंडिया और फिर नॉर्थ इंडिया भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी बन के घूमे और हरिनाम संकीर्तन के महिमा को उन्होंने प्रचार किया। He predicted that this culture of Sankirtana would be broadcast all over the world. उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में, पूरे धरती पे मतलब सब लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे। The Lord Chaitanya as the incarnation of Krishna, the person of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential part of revealed scriptures. So, क्योंकि कलयुग में अवतार it is a hidden अवतार, क्योंकि सब लोग उनके बारे में जान नहीं पाएंगे. It's a waste of time to tell others. तो इसको बोलते छन्न अवतार, hidden अवतार. तो the devotees of Lord Krishna are much attracted by the Sankirtana movement of Lord Krishna. तो संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन के प्रति कौन आकर्षित होता है? भक्त का जो स्वभाव रखता है वही आकर्षित होता है। तो आप देख सकते हो कि बहुतेक आपके जीवन में भी कभी ना कभी आपको हरे कृष्ण महामंत्र का इंट्रोडक्शन हुआ, हरिनाम संकीर्तन का इंट्रोडक्शन हुआ और धीरे धीरे आपको आदत सी होगी, आपको रुचि आ गया। क्यों? क्योंकि आपने जरूर पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया, आध्यात्मिक कार्य किया, जिसके लिए आपको हरिनाम का रुचि मिला इस भौतिक जिंदगी में। And this is definitely boon for us, by which we can just chant Hare Krishna mantra, eat Krishna prasadam, dance, and go back to Godhead. So this avatar of the Lord does not kill the miscreants, but delivers them by the causeless mercy of the Lord. So चैतन्य महाप्रभु का अवतार दुष्टों को मारता नहीं है, उनकी दुष्टता को मारता है, उनके हृदय में हरिनाम संकीर्तन को प्रकाशित करते हुए कृष्ण प्रेम को उदार रूप से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रबंध किया और उनके सेनापति श्रील प्रभुपाद जी आए और वो फैला रहे। So very quick recap about that story I was telling about Birbal and Akbar. So Akbar asked this question to Birbal, आपके भगवान को क्यों आना पड़ता है? मैं देखो जब मुझे मेरा कोई काम होता है, मैं कोई सेवक को भेज देता हूँ ना, तो उसको आने की जरूरत क्या है? तो बिरबल ने बताया मुझे थोड़ा समय दीजिए। और कुछ समय के बाद वो अकबर को लेके गए उद्यानवन में, गार्डन में, और दूर से उन दोनों ने देखा कि उनके पोते ने, उनके अकबर के पोते पानी में गिर गए। तो अकबर दौड़ के गए और पानी में कूदे और उसको बचा लिया और बीरबल हंस रहे थे। तो अकबर को समझ में आ गया कि ये बीरबल का नाटक है। तो अकबर ने बताया मैं समझ गया, जब मेरे ही पोते को बचाने की बात आई तो मैं खुद दौड़ के गया, तो मुझे कोई सेवक को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ा। मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई सेवक को पुकारना, मैं खुद पहुंच गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस सेशन। हरे कृष्ण